Namaste and good afternoon to all. It's indeed a great pleasure to warmly welcome and solicit the esteemed presence of respected and very learned Sri Nityanand Ji, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, on behalf of esteemed Atmiya University, Rajkot. We cordially welcome respected Sri Rambhai Mukherjee, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, respected Sri Arvind Bhai Rayani, Honorable Minister of State for Transport, Civil Aviation, Tourism and Pilgrimage Development, respected Sri Govind Bhai Patel, Honorable MLA of Gujarat, Sri Kamlesh Bhai Mirani, President BJP. Atmiya also welcomes respected Dr. Pradeep Dav, the first citizen of Rajkot Smart City, Sri Deepak Dwivedi, President, Sustainable Development Goals, Chaupal, Sri Phul Singh, SDG Ambassador, and all invited dignitaries from the different spheres on the occasion of digital transformation of the Faculty of Transformative Education that includes 3 schools. Number 1, School of Consciousness and Value Education. Number 2, the School of Sustainability. Number 3, the School of Indian Knowledge System. And 2 supporting research centers. 1, Sangam, a multidisciplinary research center that is inspired by the spirit of Jivan Vidya. Number 2, Samadhan, a center for Indian knowledge system fostering the solution for the sustainable development. And both these centers that I talked about are the nectar of the new education policy. And number 3, the announcement of Rajkot Sustainable Development Goals Aware City Pilot Project completion, and the most awaited an interactive program on national education policy for shaping the youth of India, startup, research and outreach. And all these are in line with meticulously prepared new education policy under the long cherished dream of making India Atmanirbhar Bharat by the most dynamic Prime Minister of India, Honorable Shri Narendra Modi ji. This will indeed steer India to knowledge-driven society for knowledge-driven economy. I benignly urge Param Pujya Tyagulab Swamiji to felicitate respected Sri Nityanand Ji with the basket of flowers on behalf of esteemed Atmiya University Rajkot, who has spent his precious time to be with us this afternoon. थैंक यू स्वामी सर। हम आपसे बताना चाहेंगे कि दिस स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर इज हैंडमेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर recycled material and it is solely prepared by the students of Atmiya. I request Sri Nityanand Ji to offer garland to Param Pujya Tyagulab Swamiji, the mentor of Atmiya campus. Thank you, sir, for your kind gesture. I request Dr. K.D. Ladwa, the principal of the first autonomous and 2 times A-grade accredited Sri M.N. Virani Science College, which is a part of this Atmiya campus, to honor Sri Rambhai Mukherjee, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, with the flowers, stall of Atmiya and Srimad Bhagavad Gita.
I request Professor D.D. Vyas to greet Honorable Shri Govindbhai Patel, Honorable MLA of Gujarat, with the flowers, stall of Atmiya and Srimad Bhagavad Gita. Respected Dr. Pradeep Dav, the first citizen of Rajkot Smart City, has been very dynamic in bringing affirmative alteration in sustainable development goals. I request Professor Ashish Kothari to greet him with the flowers, stall of Atmiya and Srimad Bhagavad Gita. I request Professor Shiv Tripathi, Honorable Vice Chancellor, to mark the presence of Sri Deepak Dwivedi, President, SDG Chopal, New Delhi, with the flowers, stall of Atmiya and Srimad Bhagavad Gita. I request Professor Jayesh Deshkar to greet Sri Phul Singh, SDG Ambassador Mumbai, and also the prominent Bhojpuri artists with the flowers, stall of Atmiya and Srimad Bhagavad Gita. Thank you all. These moments and initiatives are very important, for which we have been gathered here with the vivacious presence of our invited honorable ministers and dignitaries. It's a matter of great pleasure for Atmiya to request Honorable Sri Nityanand to digitally inaugurate the School of Consciousness and Value Education, School of Sustainability, and School of Indian Knowledge System, and Sangam, a multidisciplinary research center that is inspired by the spirit of Jivan Vidya, Samadhan, a center for Indian knowledge system, fostering the solution for sustainable development. Both these centers, as I said earlier, are the essence of new national education policy. And Dr. Kothari is requested to do the needful. Thank you all. I am happy to share with this August gathering that Atmiya University Rajkot, Government of Gujarat and Sustainable Development Goals Chopal has signed MOU and started its campaign with RMC, Rajkot Municipal Corporation, PGVCL, District Education Office, and together we connected nearly 80,000 people with the awareness to drive sustainable development goals, and we together completed the first pilot project, and it is honored by all our respected government officers. And we are happy that Rajkot Municipal Corporation wishes to facilitate Atmiya University for its comprehensive endeavors. Atmiya is delighted to be honored by Dr. Pradeep Dav, very dynamic mayor of Rajkot city. I request Param Pujya Tyagalop Swamiji to receive the memento of honor on behalf of Atmiya from Dr. Dav. Let's welcome Honorable Minister with a big round of applause. Sir. गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग एवं आई हब द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप तकनीकी नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप एवं उद्यमों का तेज गति से विकास हो रहा है।
छात्र छात्राओं की उद्यमिता विकास के लिए गुजरात एक अनूठा मॉडल बन चुका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी न सिर्फ एक अधिक रोजगार का सृजन करने में सफल होंगे, बल्कि अपने उद्यमों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में हमारे देश में नई शिक्षा नीति बनाई गई। इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर प्रारंभ किया जा चुका है। आने वाला समय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। नई शिक्षा नीति भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। नई शिक्षा नीति पूर्णतः विद्यार्थियों पर केंद्रित है और ज्ञान, विज्ञान, दक्षता तथा मानवीय मूल्यों के संवर्धन तथा समन्वय पर जोर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के नव भारत निर्माण में शिक्षा का अहम योगदान है और आगे भी रहेगा। इसके दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ धन उपार्जन अथवा जीविकोपार्जन नहीं है। उच्च शिक्षा व्यक्ति को एक संवेदनशील और कल्याणकारी व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होती है। आज भारतवर्ष न केवल आर्थिक और औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर है, बल्कि पूरे विश्व में एक मानव कल्याण हेतु प्रेरित करने की भूमिका में भी नेतृत्व कर रहा है। यह केवल माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वैश्विक विजन और कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। आइए हम सभी संकल्प लें कि शिक्षा के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। नव तकनीक का विकास हो अथवा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण या उद्यमिता, हमें सभी क्षेत्रों में हमारी प्राचीन भारत की गौरवमयी शिक्षा प्रणाली को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर पुनर्स्थापित करना होगा। आज राजकोट और सौराष्ट्र की इस पवित्र भूमि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने यह आयोजन किया, जिसके लिए मैं एक बार पुनः गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग को और आत्मीय विद्यालय को बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, हम शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं। एक तरफ जब हम हरिदर्शन मंदिर में गए थे, तो दूसरे तरफ विद्या के मंदिर में। यही भारत का ज्ञान, विज्ञान और संस्कार है। दोनों को साथ चलना होगा। हमारी वह गुरुकुल की परंपरा और वहाँ की शिक्षा पद्धति जो एक परिपूर्ण मानव बनाता था, लेकिन आधुनिकता की दौर में वह परिपूर्णता अधूरी रह गई और हम विषय शिक्षा की ओर बढ़ते गए और शिक्षा का सिर्फ हुआ तो व्यवसायीकरण हुआ। व्यवसायीकरण का भी दो अर्थ है। उस अर्थ में हम कह रहे हैं जिसको पाश्चात्य देशों ने अपनाया है, लेकिन आप सोचिए, मैं उस दौर से गुजरा हूँ और आगे की पंक्तियों में बैठे हुए लोग भी उस दौर से गुजरे हैं और ऊपर बैठे हुए लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते थे हनुमान कूद। जब जब अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों की शिक्षा के बाद अपने जीवन की यथार्थ धरातल की ओर बढ़ते थे, तो सामने समस्याएं, बहुत सारी कुरीतियां, आगे बढ़ने के लिए पथ पे बहुत सारे रोड़े दिखाई पड़ते थे। वह हमारी अधूरी शिक्षा का परिणाम था। लेकिन आज हम अपने भारत की परंपराओं की शिक्षा के अनुरूप अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक परिपूर्ण मानव बनकर निकलेंगे, जैसा
आत्मीय विश्वविद्यालय के संस्थापक परम पूज्य संतों ने जिस उद्देश्य से रखा है तभी वह पूर्ण होगा। हम मानते हैं कि हम व्यवसाय के लिए, अपने धनोपार्जन के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन भारत की शिक्षा ने धनोपार्जन की भी बात कही तो खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, गुरु के लिए, और जिसने हमको जीवन में बहुत कुछ बनाया है, मेरे जीवन का निर्माण किया, उसके लिए सबका अंश मानकर हम धनोपार्जन करते थे। यही कारण था कि अपने यहाँ व्यक्ति हमेशा, आज यह विद्या का मंदिर बनाए, स्वामी जी का तो कोई व्यापार नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा विद्या का मंदिर जहाँ 7-8 हज़ार विद्यार्थी पढ़ रहे हों, और ऐसी शिक्षा जो संपूर्ण शिक्षा, जो अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार सबकी शिक्षा दे रहा हो, ऐसा क्यों बना? इसलिए कि जब भारतीय संस्कृति ने जो हमको विरासत में दिया है संतों और गुरुओं के विचारों में, उसके फलीभूत करने के लिए बहुत ऐसे ऐसे लोग जिनके बच्चे भी नहीं इसमें पढ़ते होंगे, लेकिन उसको इस देश का एक सक्षम नागरिक बनाने के सपने को सजोए रखा होगा, उसके लिए इसमें सहयोग किए होंगे। तो यह हमारी परंपरा का एक बड़ा पार्ट है, हमारी परंपरा का यह बड़ा पार्ट है, और इसको हमको समझना होगा। मैं अभी ताशकंद के डिजास्टर मैनेजमेंट के विषयों पर करीब 20 देशों के एक समूह के साथ भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं गया था। उसमें ताजिकिस्तान भी एक देश था, उसके साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग हो रही थी। बड़ा भावुक होकर बोला कि मैं अपने ईश्वर को याद करते हुए कहा कि मैं ऊपर वालों से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ताजिकिस्तान की पारिवारिक जीवन भारत के पारिवारिक जीवन जैसा हो। सोचिए, किर्गिस्तान की बायलैटरल मीटिंग थी, तो देखिए मैं बता रहा हूं वहां का अनुभव। बहुत सारे विषयों पर कहा कि शायद मेरे देश की सेना भारत की सेना की तरह समर्पित होता। एक एक चीज का वर्णन कर रहा था, और पूरे उस मीटिंग के अंत का एक सार था कि दुनिया को एक ईमानदार, समझदार और शांति का संदेश ही नहीं, एक दुनिया को उचित संदेश वाला प्रधानमंत्री भारत को मिला है, नरेंद्र मोदी जी के रूप। सोचिए, भारत को जाना कहाँ है, भारत को कहाँ जाना है, कहाँ, और इसी प्रकार की परंपराओं से भारत विश्वगुरु बनने वाला है। इसी प्रकार की शिक्षा से भारत को विश्वगुरु स्टार्टअप होगा, उत्पादन बढ़ेगा, आवश्यकताएं हमारी पूरी होगी, हम आविष्कार की ओर बढ़ेंगे, उत्पादन की ओर बढ़ेंगे, हम निर्माण की ओर बढ़ेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, जो प्रधानमंत्री जी का कल्पना है। ईश्वर करे उनको उतनी लंबी उम्र दे। हम आज इस भगवान के मंदिर में आप सबों के सामने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उतनी लंबी उम्र दे कि 2047 का भारत वो अपने आंखों से देख सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 25 साल बाद तक के भारत की कल्पना और उसका उद्देश्य जरा सोचिए। हो सकता है नहीं भी रहे, हो सकता है रहे भी, यह तो ईश्वर जानते होंगे। लेकिन हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का आय 2047 में सबसे ज्यादा हो, इसके लिए भारत काम करे। यह सपना देखना, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और 135 करोड़ देशवासियों के जीवन में खुशियां आए,
इसके लिए संकल्प और संकल्प के साथ कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अपने देशवासियों को संदेश देना एक गुरु की तरह व्यक्तित्व को लिए हुए व्यक्ति ही कर सकता है। आज भारत के गुरु कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक गुरु की तरह भी संदेश और शिक्षा देते हैं, एक तपस्वी की तरह दिन रात लगे रहते हैं, जिनके भगीरथ प्रयास से जिस प्रकार से मानव जीवन की तृप्ति के लिए भगीरथ ने तपस्या से शंकर की जटा से गंगा मैया को धरती पे ले आए थे, उसी तरह से इस देश की गरीबी मिटे और लोगों का जीवन धन हो, इसके लिए उन्होंने अपने भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा को भारत के घर घर गांव गांव पहुंचा रहे हैं। भारत से गरीबी मिटेगी तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी राष्ट्रवाद लोग समझेंगे, भाईचारा बढ़ेगी, सब मिलकर काम करेंगे। अब भारत माँ तेरी जय हो विजय का भी हम गान करेंगे। इसलिए देश की गरीबी मिटाने का इतना बड़ा लक्ष्य 2027 में दुनिया में भारत का प्रत्येक व्यक्ति आए सबसे ज्यादा हो, इसके लिए दिन रात काम करना। एक चीज और गौर से ध्यान दीजिए, विवेकानंद सन्यासी थे, संत भी बैठे हैं हमारे यहाँ, हम उनके प्रांगण में हैं। विवेकानंद से किसी विदेशी ने एक बार कहा, आप तो सन्यासी हो, लेकिन उस देश के जो भूखा है, नंगा है या शिक्षित है और बेबस है। तो विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई बेघर है, न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है। 21वीं सदी है ना, है कि नहीं? विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या है? क्या है? जोर से जरा बोलिए राम भाई। विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या है? जरा जोर से बोलिए। नरेंद्र। आज भारत के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम क्या है? क्या? जरा जोर से बोलिए भाई। नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता है भारत को विश्व गुरु बनने से। हमारे ऋषि मुनियों ने यह दर्शन दिया है। हम एकात्म दर्शन के पुजारी नहीं हैं, हम अर्थ को भी पूछते हैं तो हम धर्म को ही पूछते हैं, और हम पुरुषार्थ को भी मानते हैं तो हम इस विश्व की सृष्टि को, हम उस प्रजनन को भी मानते हैं। दुनिया कार्ल मार्क्स ने एक दर्शन दिया अर्थ का, कि दुनिया का हर व्यक्ति सिर्फ अर्थ के लिए जीता है, वही उसका पुरुषार्थ है। फ्रायड ने कहा कि दुनिया का हर व्यक्ति सिर्फ, हम जिसको प्रकृति का प्रजनन कहते हैं उसको वह काम वासना कहता है कि काम वासना के लिए वह जीता और मरता है, उसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है। लेकिन भारत किसी एकांगी दर्शन में नहीं गया। भारत के सनातन ने क्या दर्शन दिया? अर्थ का, धर्म का, काम का और पुरुषार्थ का। चार पुरुषार्थ को रखने वाला भारत को अब कोई न झुका सकता है, न कोई रोक सकता है। और जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो लोग कहते हैं कि भारत को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, अपने गोद में एक सपूत को जन्म ले लेता है। वह सपूत गुजरात की धरती से जन्म लेकर पूरे हिंदुस्तान को एक नया जीवन दे रहा है, और वह जीवन की प्रकाश, उस पथ का प्रकाश सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। चलिए हम सब इसी कामना के साथ आगे बढ़े। भारत माँ तेरी जय हो
विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Let's urge Param Pujya Swamiji to bless us all and guide us. Param Pujya Swamiji. आज आत्मीय यूनिवर्सिटी के निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच पधारे हुए हमारे आत्मीय स्वजन नित्यानंद राय जी, हमारे अपने ही सांसद आत्मीय श्री मोकरिया जी, हमारे महापौर प्रदीप जी, पूर्व मंत्री और हमारे वर्तमान विधायक गोविंद भाई पटेल जी, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच पधारे द्विवेदी जी, फुल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित निमंत्रित सभी महानुभावों, आत्मीय अध्यापकगण और सभी आत्मीय विद्यार्थीगण। माननीय मंत्री जी की बात सुनने के बाद हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लगती है। फिर भी गुरु हरि स्वामी जी महाराज ने जिस संकल्प से इस विद्या तीर्थ का जो निर्माण करवाया है, उसके बारे में दो शब्द कहने का मन हो रहा है। हम जानते हैं कि गुजरात बड़ौदा के बगल में हरिधाम के नाम से स्वामी जी महाराज ने मंदिर आश्रम बनवाया है और ज़्यादा करके विश्व परिभ्रमण करते हुए युवाओं के उत्थान के लिए उन्होंने पूरा समग्र जीवन व्यतीत कर दिया है। जब राजकोट की धरती पर आके इस विद्या तीर्थ का निर्माण करना था, तब स्वामी जी महाराज ने वहाँ मंदिर आश्रम से यहाँ भेजते हुए हमें कहा था कि संन्यास का मार्ग भगवान की कृपा से ग्रहण करने के बाद हमने एक संसार का त्याग कर दिया, माता पिता महत्वाकांक्षा सबका त्याग कर दिया। अब राजकोट जाने का जो संकल्प है वो अपने आप में एक संसार बसाने की बड़ी प्रक्रिया है। फिर उन्होंने बताया कि एक संसार का त्याग करने के बाद ये दूसरा संसार बसाने की ओर हम क्यों बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने बताया था कि हम कपड़े पहनते हैं तो समाज का ऋण हम पर है, समाज से कपड़े आते हैं, 2 वक्त की रोटी भी समाज से आती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज का ऋण चुकाएं। फिर उन्होंने बताया था कि ये गिरवा चोला देख के सब नमन करते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती है कि सबको ये गिरवा चोला मिल जाए। तो ये गिरवा चोला मिला है तो वो भारत माता की कृपा और धर्म और संस्कृति का हम पर ऋण है। और तीसरी बात बताते हुए उन्होंने बताया था कि अगर पश्चिम के किसी देश में हमें जन्म मिला होता तो धर्म, ध्यान, संस्कार, संस्कृति किसी बात का शायद हमें अता पता न होता। तो इस भारत माता का भी हम पर ऋण है। ये तीनों ऋण चुकाने के लिए अगर श्रेष्ठतम कोई माध्यम है तो वो माध्यम शिक्षा का माध्यम। आदरणीय मंत्री जी जो हमारे इस विश्वविद्यालय में आए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और आज जो हमने यहाँ नए कार्यक्रम को लॉन्च करने का प्रयास किया है, तो वो प्रयास में हम सच्चे लगन से एक निष्ठा और ऑनेस्टी के साथ उसमें हम आगे बढ़ते रहें। हमारे पूरे टीम का ये सौभाग्य है। अभी इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 5 दिन का एक अभी वर्कशॉप भी किया गया है और वो वर्कशॉप में सबने संकल्प लिया है कि एक साथ 6 महीना इसकी ट्रेनिंग लेनी है। 6 महीना हमारे जो वरिष्ठ टीम है, हमारी लीडरशिप टीम, उन्होंने वो संकल्प लिया है कि हमारे अध्यापकों में से कुछ सिलेक्टेड लोगों को चुन कर जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 6 महीना
कंटिन्यूअस उसका अध्ययन करना है और वो संकल्प को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे युवाओं को हमारे इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के माध्यम से समाज के सामने एक रोल मॉडल पेश करना है और वो रोल मॉडल पेश करके सच्चे अर्थ में आत्मीय नाम हम सार्थक कर पाएँ, ऐसी भगवान के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आने वाले दिनों में जो सबने जो संकल्प दोहराया है वो आत्मीय विश्वविद्यालय से लेके राजकोट महानगर से लेके गुजरात से लेके पूरे भारत से लेके पूरे विश्व में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प व्यापक हो, क्योंकि हमारी तो फिलोसॉफी है कि जड़ में चेतन में हर एक कण कण में भगवान की शक्ति का वास है, तो वो शक्ति को जागृत करने का बल प्रभु हमें दे। इसी प्रार्थना के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय स्वामीनारायण। Thank you, Swamiji, for visualizing in words the vision and the mission that ATMI has always looked for. And the last two, that is Honorable Minister's words and Param Pujya Swamiji's words, both have complemented one another. And in a sense, how new national education policy can really penetrate into making of new India. And it's matter of great pleasure for me to announce that just now, few minutes before, by the hands of Honorable Vice President of India, we have received rupees 2 crore grant for SSIP. Just now. और माननीय मंत्री जी की अनुमति हो तो 3-4 बच्चे questions पूछे. So, if the session is open for the discussion or rather Q&A, question and answer, if you have any deliberate questions to be asked for Honorable Minister, the mic would be given to you. You can use that mic and you can, at your place, you can stand up, you can give your brief introduction and you can put up your question. नमस्ते सर, मैं रचना जोशी फार्मेसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। जैसे अभी हमें भी पता चला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मानवीय जीवन मूल्यों को भी एक महत्तम स्थान दिया गया है और हम भी बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें पहले से ही आत्मीय विश्वविद्यालय में सार्वभौम जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो आपके विचार में ये शिक्षा नीति सामाजिक अनिष्टों पर और जो समस्याएं हैं उनमें कैसे सहायता करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा पॉलिसी जो बनी, यह उस पॉलिसी में के केंद्र में आप जब देखेंगे कि जो समाज की कुरीतियां हैं उसका समापन हो, मतलब नहीं कि वह समाप्त हो, हर प्रकार की कुरीति। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि शिक्षा में संपूर्णता होगी तो वह व्यावसायिक शिक्षा भी होगा, सामाजिक शिक्षा भी होगा, आध्यात्मिक शिक्षा भी होगा, परंपराओं से परिपूर्ण होगा और कुरीतियों को समाप्त करने का वो रास्ता ढूंढेगा। जैसे अगर हम वेद शास्त्रों में पढ़ते हैं अपने विवाह की परंपराओं को, तो उस विवाह की परंपराओं को देखेंगे तो उसमें कहीं से दहेज प्रथा नहीं था। अगर दहेज प्रथा एक कुरीति है तो अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा या संस्कार की शिक्षा से जाएंगे तो ना लड़के दहेज मांगेंगे, नहीं बेटियां दहेज देने के लिए तैयार होगी। बहुत सारा उदाहरण ऐसा आया है और उसके इस ज्ञान से अपने परिवार को भी समझाने में वह सामर्थ्य होगा। तो एक यह पार्ट है। एक कुरीतियों का पार्ट मैं बताता हूँ। जैसे गुजरात में नहीं है, लेकिन शायद इसी कैंपस में घूमते घूमते आज आने के बाद कहीं न कहीं से शिक्षा हमारी जातिवाद को कैसे समाप्त करेगा। तो जब शिक्षा के माध्यम से हम विकास की ओर बढ़ेंगे
हमारी उन्नति होगी। और हम जब समाज शास्त्र को पढ़ेंगे, जो समाज शास्त्र पहले पढ़ाया जाता था, उस समाज शास्त्र की बात मैंने कर रहा हूँ, नागरिक भूगोल और इतिहास की नहीं, समाज शास्त्र की, तो हम अपनी पुरातन परंपरा को जानेंगे। पुरातन परंपरा शिक्षा जब हम उसमें प्राप्त करेंगे तो उसमें जातिवाद हमको नहीं मिलेगी। जैसे गोत्र समझते हैं, गोत्र समझते हैं ना, समझते हैं कि नहीं गोत्र? पक्का? आप मेरा मान लेना, एक ही जाति में अगर किसी ब्राह्मण का गोत्र अगर सांडिल है तो किसी वैश्य या किसी अनुसूचित जाति का भी गोत्र सांडिल है। अगर हम यह शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर जाति की भावना रहेगी क्या? रहेगी। आप पढ़ना इसको, करना रिसर्च, मैं इस पर रिसर्च किया हूँ, सर से मेरी बात हो रही थी। उसी प्रकार से अगर हम, भ्रष्टाचार भी एक कुरीति है, अगर हम अपनी परंपरा से सीखेंगे कि हम प्रकृति की पूजा करें तो हम पर्यावरण पर ध्यान देंगे। हम अगर यह मानेंगे कि अगर हमारी परंपरा में कहा गया है कि भ्रष्टाचार अधर्म है, जैसे आप महाभारत को पढ़े तो पूरी लड़ाई धर्म और अधर्म की हो गई, तो अगर हम अपने संस्कार में इस बात को समावेश करेंगे तो उस समय हम कुरीतियों पर विजय प्राप्त कर। हम कुछ उदाहरण दिए तो जब भ्रष्टाचार यानी हम किसी, जैसे मान ली घूस लेना एक भ्रष्टाचार है, किसी को किसी समस्या में उलझा देना भी एक भ्रष्टाचार है, हम किसी को गलत सलाह दे रहे हैं तो अभी भ्रष्टाचार है, और हम संक्षिप्त उदाहरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की शिक्षा में हम पुरातन शिक्षा का समावेश कर रहे हैं, यानी कि समावेश करने का मतलब है कि आधुनिकता को समाहित करते हुए पौराणिक यानी हमारी विरासत में जो संस्कार की शिक्षा मिली है उसके साथ पिरोकर हम अगर शिक्षा को हम दे पाए अपने पीढ़ी को दर पीढ़ी को, यानी बच्चों को, तो फिर हम कुरीतियों को उसमें दूर कर सकते हैं। हम 2-3 उदाहरण दिए, यानी कि हम संपूर्ण शिक्षा की तरफ जाएंगे। अगर स्पष्ट नहीं हो रहा होगा तो फिर पूछ सकती हूँ। नहीं, स्पष्ट हुआ जी, धन्यवाद। हेलो सर, नमस्ते। मैं मोहित वीरानी, फार्मर हूँ और यहाँ से ही तालाला गिर से आया हूँ, और मेरा स्टार्टअप है मिस्टर मैंगो मैन। और मैं अभी मेरा जो एग्रीकल्चर मेरा मैंगो फार्म है उसे मैं यार तुम्हारा वह फूड प्रोडक्ट को देख के लगा कि तुम उत्पादन कर रहे हो, उसके लिए आपको प्राइज भी मिला, लेकिन वो तुम मैंगो का जूस नहीं पिलाए। सर आपके लिए ये लाया था मैं, और लाया हूँ आपके लिए। थैंक यू। तो मेरे सबको नहीं पिलाना है, जो मांगे उसी को पिलाना है। मैं मांगा हूँ, फिर बाद में कोई मांगेगा तो देखना, अब बिना शुल्क के किसी को नहीं पिलाना है, नहीं तो दोस्ती में भी व्यापार बंद होता है, ठीक ना? सर, और मेरे जैसे मैं अभी फार्मर मतलब खेडूत परिवार से हूँ, तो मेरे जैसे सब अभी जो यहाँ पे उपस्थित जब स्टूडेंट है वो मेरे जैसे भी सोचे और जो फार्मर फैमिली से और कुछ अपना स्टार्टअप करके आगे बढ़े, उसके लिए आपका थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। थैंक यू। देखिए, किसान परिवार से हैं, मैं भी अभी भी खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। आपको उसमें 2-3 चीज़ें ढूंढना चाहिए। मैं आपने सलाह दिया है, उसी सलाह में मैं अपनी सलाह को जोड़ रहा हूँ, ठीक ना? कि आप देखिए कि आवश्यकता किस चीज़ की है, खेती करना है तो अगर आपकी मार्केट की पहुंच यहाँ से 100 किलोमीटर तक है तो कौन सा कृषि उत्पाद या फूड प्रोसेसिंग का उत्पाद वहाँ के मार्केट को हम दे सकते हैं, ठीक है? लोकल फॉर वोकल का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और इसका बड़ा असर है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में असर है। खेती एक ऐसी चीज़ है आज के वातावरण में कि आज अगर खेती को उद्योग की तरह अगर हम करने लगे तो कृषि उत्पाद से भी अच्छा इनकम मैं कर सकता हूँ। जैसे
अनसीजनल खेती करना, ठीक है। आधे हम धीरे धीरे भारत ही नहीं दुनिया की जमी का, धरती का उर्वरा ताकत कम हुई है, कार्बन वैल्यू। तो उसको वापस करने के लिए हम आधा ऑर्गेनिक आधा रासायनिक खाद देने का एक प्रोविजन आया। इनका आग्रह है आप सबों से कि आप भी खेती को करें। तो जो अगर कुछ जिसके पास खेत है, अगर आप दूसरा व्यापार भी करते हैं तो खेत अगर बेकार पड़ा है तो उसको भी आप अपने आय का साधन बनाइए। एक प्रचलन ऐसा होता है कि हमारे पास खेत है और हम बड़े व्यापारी बन गए तो खेत से हम उपज नहीं लेते हैं, लेते भी है तो सिर्फ अपने खाने के लिए लेते हैं, अगर आलस कर दिए तो उसमें उपज भी नहीं लेते हैं। और खेती का आज उपयोग कितना मैं बताता हूँ, एकदम एक एक। जैसे आपने खेती से, अगर गुजरात में तो सहकारिता का सिस्टम है, और मैं गृह मंत्री जी को एक बार सुन रहा था, बता रहा माने अमित शाह जी को, ऐसे ही उनके सानिध्य में काम करता हूँ, मेरा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो उन्होंने एक बार अपने गांव में बहुत एक चीज़ की बड़ी उपज हो गई। आपके विषय से थोड़ा हम अलग जा रहे हैं, लेकिन जो खेती विषय है तो उसमें लगता है कुछ चीज़ को शेयर करो। तो और मंडी एक थी, गांव में इतनी उपज हो गई कि बहुत सस्ती हो गई। सस्ती हो गई तो कुछ लोगों का पैसा बचता होगा, लेकिन किसानों की तो आमदनी कम गई। किसान खेती करता है आमदनी के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम किया कि जैसे मान लीजिए कि एक सब्जी अगर बड़े भारी पैमाने पे होने लगा और उसका मार्केट छोटा है, मैं सहकारिता की बात कर रहा हूँ माननीय गृह मंत्री जी की, उन्होंने अपने गांव के बगल में यह प्रावधान कर दिया कि आप खेत में बोए जरूर, लेकिन हर किसान का समूह जो आज अगर 50 किसान आज वह खेती करता है जिस चीज़ का, उसी चीज़ का बीज वह 1 महीना बाद डाले, तो क्या होगा कि इसकी फसल तो पहले उगेगी, तो दूसरी फसल फिर 1 महीना बाद आएगी, तो मार्केट की कमी नहीं होगी। और मार्केट में जब उत्पादन एक बैलेंस करके रहेगा तो उसकी कीमत भी बैलेंस रूप में मिलेगा, बहुत ज़्यादा घटेगा नहीं। इनका आग्रह है खेती करने का, खेती करना चाहिए। एक समय आएगा जो हर व्यक्ति जिसके पास खेत है वह तो करेगा ही, दूसरा भी खेती करना चाहेगा। आज खेती की तरफ लोगों का झुका हुआ है प्रधानमंत्री जी की नीति के कारण, भारत सरकार की कृषि नीति के कारण, और उसको हो सके तो बाई प्रोडक्ट में ले जाइए। जैसे हम दूध उत्पादन करते हैं और हम 125 लीटर दूध उत्पादन करते हैं, अगर हम सहकारिता से समूह बना के अगर 10 किसान आ गए तो हम 250 लीटर हमारे पास हो गया। हम उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं। अगर उस दूध के से हम अगर पनीर फाड़ कर पनीर बना लिए तो पनीर का दूध के एवरेज में ज़्यादा कीमत हो गया। तो हम बाई एग्रीकल्चर में भी हम बाई प्रोडक्ट की ओर बढ़े तो शायद हम कृषि को भी सफल बना पाएंगे और अपना इनकम में बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सर। सर अब नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद। अगर कुछ बचा होगा तो दोबारे कहेंगे विश्वविद्यालय से कि हमको इनवाइट करें और उस दिन आपका हम जूस भी पी लेंगे। आज छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। On the occasion of the kind presence of Honorable Sri Nityanand Ji and other dignitaries, Atmiya and Ahiyab together wish to honor selected 11 startups with the memento. I request Jaideep Rayani to come up on the stage quickly and to receive the memento from Sri Nityanand Ji. His area of startup is agriculture and aquaculture. I request Saga Dubal and Deep Tilwa to come up on the stage and receive the memento from Sri Nityanand Ji. His area of startup is IoT and artificial intelligence. I request Kirtan Panchani to come up on the stage and receive the memento from Sri Nityanand Ji. His area of startup is renewable energy.
I request Chintan Mehta to come up on the stage and receive the memento from Shri Rambhai Mukaria. His area of startup is IoT. I request Dr. Sudhir Bhatt to come up on the stage quickly and receive the memento from Shri Rambhai Mukaria. His area of startup is Agritech. Sudhir Bhatt. I request Murtuza Barmal to come up on the stage quickly and receive the memento from Shri Rambhai Mukaria. His area of startup is service industry. I request Harsh Waded to come up on the stage. Harsh Wader is also requested to receive the memento, and his area of startup is clean energy. Number 8, I request Kaushal Kumar Khanpara to come up on the stage and receive the memento from Shri Govind Bhai Patel. His area of startup is manufacturing. I request Mohit Virani to come up on the stage quickly and receive the memento from Shri Govind Bhai Patel, and his area of startup is food processing. I request Brijesh Vorat to come up on the stage and receive the memento from Dr. Pradeep Dav, and his area of startup is EdTech. Brijesh Vora. I request Taranpreet Singh to come up on the stage and receive the memento from Dr. Dav. His area of startup is health tech and consumer goods.